guys, welcome back to my YouTube channel. Today is my second lecture on differential equation. In last class I have taught that what is a differential equation, what is ordinary differential equation, what is order and what is degree, and as well as I have taken few examples how to identify order and degree. Okay, so this is my second lecture. In this lecture I will be teaching you guys how to solve first order and first degree differential equation. So first of all, what is first order and what is first degree differential equation? How to identify what is first order and what is first degree differential equation. So this is the general form of first order and first degree differential equation. So as you can see, first order because it has been differentiated only once. So dy by dx equals to some function of x and y. Okay, if this is the criteria, if this is the case, then we can say that the differential equation is in first order and first degree differential equation. So there are many methods to solve. We solve in different methods of first order and first degree differential equation, like variable separable method, homogeneous reducible to homogeneous, linear reducible to linear, then reducible to exact. So many others are there. So in this video I will be teaching you first method, that is variable separable method. Okay, so how to use variable separable method? So it has two steps, very basic steps. First, what we will do, we will separate the variables. We will separate the variables. Then after, we will integrate on both sides. Means when we are separating, we will take left hand side and we will take right hand side. Okay, we will separate the variables. Then we will integrate on both sides. So this is the basic criteria of how to solve first order and first degree differential equation using variable separable method. Let's take one or two examples, then it will be more clear to you guys. Okay, so let's start. So guys, I have taken one example of first order and first degree differential equation. So we'll solve this type of equations with the help of variable separable method. Okay, so कैसे करते हैं देख लेते हैं. By variable separable method. ओके, सो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं. सो कैसे करेंगे हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट, लेट्स सी. सो यहाँ पे dy है, सो dy को अकेले कर दो. ये x का जो भी है उसको इस तरफ लेके आए, ठीक है. e to the power x plus minus e to the power x, ओके, प्लस e to the power minus x और dx हो जाएगा, ठीक है. अब क्या करेंगे हम लोग, अब बोथ साइड में इंटीग्रेट कर देंगे. क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देंगे हम लोग. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो कुछ ऐसे हो जाएगा ये dx. ओके, सो हम लोग को तो पता ही है इंटीग्रेटिंग ऑफ dy क्या होता है, y हो जाता है इक्वल्स टू. अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे. सो अगर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पुट t इक्वल्स टू e to the x प्लस e to the power minus x, तो dt क्या हो जाएगा, e to the x माइनस e to the power minus x dx हो जाएगा, है कि नहीं. तो ये निकल जाएगा. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो dt अपॉन t. सो y इक्वल्स टू log t हो जाएगा, ओके, प्लस c. सो y इक्वल्स टू log t का वैल्यू कितना लिया था मैंने, e to the power x प्लस e to the power minus x प्लस c. तो ये हमारा सॉल्यूशन, कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगा. इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा. तो ऐसे ही हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड करते हैं. सो आई होप यू गाइस डोंट हैव एनी डाउट्स. सो let us take another example. So guys, let us take another example. So ये example है 1 plus x square divided by dx minus x equals to 2 tan inverse x. तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं by separation of variable method. So देखते हैं. So by VSM मतलब variable separable method है.
सो इसको हम कैसे करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम वेरिएबल को, हमारा फर्स्ट काम यही है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल्स है x, तो x को सब एक तरफ करेंगे हम लोग। सो dy अपॉन dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये माइनस एक्स उस साइड चला जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिर dy यहाँ पे अगर हम लोग अकेले रह गया dy, ये इनटू है नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx ऊपर चला जाएगा dx। तो फिर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स हमारा टोटली सेपरेट हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे, अभी सेकंड स्टेप हम लोग का वही रहेगा, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, देखते हैं इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ऑफ dy इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan इनवर्स x प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा y इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं इसको हम ऐसे। तो इसको देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर मैं tan इनवर्स x को t मान लेता हूँ, tan इनवर्स x को t मान लेता हूँ, तो dt क्या हो जाएगा मेरा, dt होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट अगर कर दूँ इसको, तो y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 बाहर निकल जाएगा, tan इनवर्स को मैंने लिया था t और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिया है मैंने dt प्लस इंटीग्रेशन। अभी देखिए इसको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप यू ऑल नो सब्स्टिट्यूशन मेथड। इफ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पता है, प्लीज़ 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 क्लास 11-12 के NCERTs में जाइए, वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक कैलकुलस का टॉपिक्स वहाँ पे कवर अप कीजिए। उसके बाद आइए आप यहाँ पे, तभी आप समझ सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे t लिया था मैंने, तो यहाँ पे अगर p ले लेता हूँ, p इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो dp इक्वल्स टू होगा 2x dx, ठीक है। 2x dx हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, यहाँ पे 2x अगर मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे 1/2 मेरे को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं dp ले लेता हूँ, इसको dp अपॉन p ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। तो y इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 लॉग p प्लस c, और फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा यहाँ पे 2 यहाँ पे कट गया, y इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस हाफ टी स्क्वायर प्लस हाफ लॉग, ओके, टी स्क्वायर तो क्यों लूँ, y इक्वल्स टू t का वैल्यू क्या रखा हमने, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस हाफ लॉग p, p था मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो आई होप ये वाला एग्जाम्पल भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा। वन मोर एग्जाम्पल, देन वी विल move on to the next method of solving first order and first degree differential equation. Okay guys, this is the last question under variable separable method. So देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे बोला है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस e to the power 2x dy प्लस 1 प्लस y स्क्वायर e to the power x dx इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का प्रोसेस वही रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का काम वही रहेगा कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। सो बाय VSM, बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सो जो डिफरेंस जो इक्वेशन दिया है तो उसको लिख लेते हैं पहले, सॉरी 1 प्लस e to the power 2x dy प्लस, ओके, इसको उस साइड भेज देते हैं पहले, ठीक है। तो 1 प्लस
वाई स्क्वायर e to power x dx हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये y है सो ये नीचे आ जाएगा, सो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस e to power x बाय 1 प्लस e to power 2x dx हो गया। सो क्या करेंगे, अभी हमारा सारे वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, x एक तरफ है y एक तरफ है, सो हम लोग बोथ साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, सो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस e to power x 1 प्लस e to power 2x dx। ठीक है, ये हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, एज यू कैन सी दैट dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है tan इनवर्स y, tan इनवर्स y होता है इक्वल्स टू माइनस होगा, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से अगर देखूं तो अगर मैं t को 1 प्लस e to power 2x लिखूं तो dt हो जाएगा मेरा 2 e to power 2x dx। ओके, सो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक 1/2 को इंट्रोड्यूस करूँगा और यहाँ पे dt लिख दूँगा बाय t, तो tan इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस हाफ log t प्लस c, सो tan इनवर्स y ये इस साइड आएगा प्लस हाफ log t को मैंने लिखा था 1 प्लस e to power 2x प्लस c, ये मेरा प्लस सॉरी इक्वल्स टू c, तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो गाइस, दिस वाज माय लास्ट क्वेश्चन on the basis of variable separable method, so I hope you like the content और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा variable separable method। After this there is no video on variable separable method, if you have any doubts please comment it down, and if I have made some mistake please that also write it down in the comment box so that I can improve myself, and I'll be bringing more videos in this content, okay, in this topic which is differential equation। So thank you very much, मेरे चैनल के साथ प्लीज़ बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ शेयर करें दैट स्टूडेंट्स, जो आप लोग के तरह स्टूडेंट्स है वो भी देख सके मेरे कंटेंट को। इफ़ यू हैव एनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स which who needs he or she needs this type of lectures of differential equation or any other higher mathematics related concept which I'll be posting very soon, so उनको शेयर कर दीजिए वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द कंटेंट, थैंक यू वेरी मच।